अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द डायमेंशन शोज द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये कि डायमेंशंस जो हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की क्वालिटी को शो करते हैं। क्वालिटी से मुराद क्या है कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हम देखते हैं कि जी इसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी से मतलब कि किस चीज़ से मिलकर बनी है। तो सेम इसी तरह से डायमेंशंस हमें बताती है कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो किन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। All seven base quantities are considered as a dimensions denoted by a specific symbol written within square brackets, as length is written as L within square bracket, mass with M within square bracket, time with capital T within square brackets. Similarly, thermodynamics temperature with theta, electric current with I, and luminous intensity with J, and amount of substance with N. All other physical quantities can be expressed in terms of seven base quantities raised to some power. मतलब ये कि जब हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारी बेस क्वांटिटी नहीं है तो उसकी जब डायमेंशंस लिखते हैं तो हम इन्हीं बेस क्वांटिटीज की डायमेंशंस की सम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। The dimensions of physical quantities are the power to which fundamental or the base quantities are raised to represent that quantities. For example, एरिया की डायमेंशंस को हम लिखते हैं m नॉट l स्क्वायर t रेज टू पावर नॉट। सिमिलरली डेंसिटी has dimensions m raised to power 1, l raised to power minus 3, t raised to power 0. And the speed m naught l raised to power 1, t raised to power minus 1. And the acceleration m naught l raised to power 1, t raised to power minus 2. Gravitational constant m raised to power minus 1, l raised to power 3, and t raised to power minus 2. Power has dimension m raised to power 1, l raised to power 2, and t raised to power minus 3. And the strain has no dimension, and the frequency has dimension m raised to power 0, l raised to power 0, t raised to power minus 1. इस तरह से work has dimension m raised to power 1, l raised to power 2, and t raised to power minus 2. And the surface tension has dimension m raised to power 1, l raised to power 0, and t raised to power minus 2. Dimensional quantities क्या होती हैं? Dimensional quantity is a physical quantity which has dimensions. For example, speed, acceleration, momentum, torque. These are all the dimensional quantities. Dimensionless quantities. The dimensionless quantity is a physical quantity which has no dimension. For example, relative density, refractive index, and the strain. These are dimensionless quantities. Dimensional constant क्या होता है जी? Dimensional constant is a constant which has dimension. Universal gravitational constant, Planck constant, Hubble constant, Stephen constant, Wien's constant, Boltzmann constant, universal gas constant, and the Faraday constant. These are all the dimensional constant. Dimensionless constant क्या होते हैं जी? Dimensionless constant is a constant which has no dimension. For example, 5 minus 0.38 e pi. These are all the dimensionless constant because they are not having any dimensions. Dimensional formula क्या होता है जी? The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantities. For example, the dimension formula of the volume is m naught L cube T raised to power naught. And the dimensional formula of the speed or the velocity is m naught L T raised to power minus 1. And the dimensional formula of acceleration is m naught L T raised to power minus 2. मतलब कि जो dimensions होती है किसी भी physical quantities की वो ही उसका dimensional formula कहलाता है. Dimensional equation क्या होती है जी? An equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called the dimensional equation.
ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी डिमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट कर लिया जाए तो हमारे पास डिमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल, it is the dimensional equation of the volume, it is the dimensional equation of the speed, and it is the dimensional equation of acceleration। अच्छा जी, अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन जो है वो ड्राइव करते हैं उनके फिजिकल फार्मूला से। हाँ जी, सबसे पहले वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बराबर होती है, तो इसकी डायमेंशन जो होंगी, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन जो है वो लेंथ की होंगी और जबकि टाइम की टी, तो आपके पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल टी माइनस टू। इसी तरह से एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है, दैट इज एल टी माइनस वन, जबकि टाइम की टी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एल टी माइनस टू आ जाएगा। इस तरह से फोर्स बराबर होती है मास इनटू एक्सेलरेशन के, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स की डायमेंशन आपके पास आएगी मास की कैपिटल एम, जबकि एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपने अभी कैलकुलेट की है, दैट इज एल टी माइनस टू। सो द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स विल बिकम एम एल टी माइनस टू। वर्क डन की डायमेंशन है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी वर्क डन, तो फोर्स की डायमेंशन आपने अभी कैलकुलेट की है एम एल टी माइनस टू, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन, तो आपके पास डायमेंशन ऑफ द वर्क डन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट है जी हमारे पास पावर। पावर बराबर होती है जी वर्क डन ओवर टाइम, तो पावर वर्क डन की डायमेंशन अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम की उसी तरह से टी, तो टी जब ऊपर आएगा तो टी रेस्ट पावर माइनस थ्री हो जाएगा, तो डायमेंशन बन जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी तरह से मोमेंटम है जी मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, मास की डायमेंशन आपके पास m, जबकि वेलोसिटी की डायमेंशन हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है, दैट इज एल टी माइनस वन, सो द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम इज एम एल टी माइनस वन। इसी तरह से सरफेस टेंशन बराबर होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ के या वर्क डन पर यूनिट एरिया के, तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और लेंथ की एल, तो आपके पास एम टी माइनस टू जो है वो सरफेस टेंशन की डायमेंशन आ गई। इस तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी आपके पास, दैट इज हैविंग द फॉर्मूला एफ आर स्क्वायर ओवर एम वन एम टू, तो फोर्स की डायमेंशन आपके पास थी एम एल टी माइनस टू, और आर चूंकि लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज है, तो लेंथ की डायमेंशन एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे m1 भी मैस है और m2 भी मैस है, दोनों मैस की डायमेंशन आ जाएंगी, और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद ये एक m से कैंसिल हो जाएगा, तो ये m ऊपर आएगा तो m माइनस वन टी रेस्ट टू पावर माइनस टू और एल क्यूब हो जाएगा, तो डायमेंशन बन जाएगी m रेस्ट टू पावर माइनस वन एल क्यूब टी रेस्ट टू पावर माइनस टू। नेक्स्ट है जी प्रेशर, जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स की डायमेंशन वही आ गई एम एल टी माइनस टू, जबकि नीचे एरिया जो कि जिसकी डायमेंशन होती है जी एल स्क्वायर, तो आपके पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ गई। एरिया की डायमेंशन यहाँ पे निकाली गई है जी लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ तो लेंथ ही है जबकि विड्थ भी लेंथ ही है, तो आपके पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। इस तरह से वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो तीनों लेंथ है तो एल का क्यूब हो जाएगा। इस तरह से डेंसिटी आपके पास आ जाती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की डायमेंशन आपके पास m, जबकि वॉल्यूम की डायमेंशन आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की है, दैट इज एल क्यूब, सो द डायमेंशन ऑफ एम एल माइनस थ्री। तो ये थी कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस उनके फिजिकल फार्मूलाज की मदद से। यहाँ पे है जी कुछ क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशंस जो है वो सेम होती हैं, जिसमें इम्पल्स एंड मोमेंटम that is having dimension mlt minus वन, इस तरह से वर्क, एनर्जी, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, इनकी भी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि सेम है सबकी। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट एंड रोटेशनल इंपल्स, इन तमाम की डायमेंशन जो है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और स्ट्रेस, प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन तमाम की डायमेंशन है जी एम एल माइनस वन टी माइनस टू के। इस तरह से स्प्रिंग कांस्टेंट और द फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, दैट इज हैविंग डायमेंशन एम टी माइनस टू। नेक्स्ट है जी एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इन तमाम की डायमेंशन है जी टी रेस्ट पावर माइनस वन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द लेटेंट हीट हैज डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू, एंड थर्मल कैपेसिटी, एंट्रोपी, universal gas constant and the Boltzmann constant has dimension m l square t minus 2 k minus 1. इस तरह से force or the thrust has dimension m l t minus 2 and power and luminous flux has dimension m raised to power 1 l square t minus 3.
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डिमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या हैं। लेक्चर अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।